میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایسے خطیب کو دعوت دی جائے کہ جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں اس ناکام رہتی ہے، اور کتنے ہی کام جن کو سننے کی آرزویں لے رہتے ہیں، کتنے ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتے ہیں، اور دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جو گائے کو بہترین عالم بھی ہے اور فطر پر مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی، دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، عمدہ بیان خطیب بھی، اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے بادان تک، تدریس گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیان کی وادیوں سے لے کر فکر الہامی کی فضاؤں تک، اور اپنے کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شاہراہ ہے، جن سے میری مراد استاد محترم حضرت اقدس مولانا و مفتی مرغوب الرحمن صاحب مظاہری، استاد حدیث ادارہ فضل قرآن محمد چوک اپنی بانی ہے۔ میں حضرت والا سے ادباً درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ناصحانہ خطابت سے ہم سامعین کے علم تشنگی کو بجھائے۔ حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب حضرات سلام کا جواب ہے۔ پھر میں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تھوڑا ایکو تو کم کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ جو حضرات کرسی میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کرسی لے کر اندر آ جائیے، کرسی لے کر ہی اندر آ جائیے، کرسی لے کر ہی اندر آ جائیے، اچھا لگے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا سا غور سے سنیے، کچھ کام کی باتیں کہنی ہے۔ بہت خوشی ہوئی، بہت دنوں سے آپ کے گاؤں میں سننے میں آیا دینی پروگرام نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، لیکن یہ ہمارے عزیزم حافظ تاجر صاحب کی محنت ہے اور آپ لوگوں کی محنت ہے کہ آج مسجد میں مائک کا بھی انتظام ہوا اور ایک دینی پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں سنانے کا اور آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب نعمت ملے تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، جس کو ہم لوگ کلام اللہ کہتے ہیں۔
अल्लाह की किताब है, इतनी अजीम किताब है कि इस किताब की निस्बत जिससे भी जुड़ गई वो अफजल हो गए। चुनांचे 1,24,000 तकरीबन अंबिया किराम दुनिया में आए, लेकिन उन तमाम अंबिया की उम्मत बनी। उन उम्मतों में ये उम्मत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, जिस उम्मत में हम लोगों को अल्लाह ताला ने बिन मांगे अता फरमाया, बिन मांगे उस उम्मत में पैदा फरमाया, ये उम्मत इस कुरान की बदौलत सबसे अफजल बन गई। 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत है, तो 1,24,000 गोया के उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत अगर है तो ये उम्मत मोहम्मदिया, हम और आप। किस वजह से? कुरान की बदौलत। जिस कुरान को हम लोग पढ़ना छोड़ दिए, जबकि कुरान हमारी दीनी जिंदगी के लिए मशअले राह है। कुरान ही के जरिए हम आखिरत को समझ सकते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल को राजी करने वाले आमाल जान सकते हैं, लेकिन हम उसी कुरान को भूल बैठे। कभी तो ऐसा होता है कि कुरान घर में रखा होता है, लेकिन उस कुरान को पढ़ने की कभी सादत नहीं होती, कभी मौका नहीं मिलता, कभी रखा रखा उस पर धूल भी चढ़ जाता है, लेकिन उस कुरान को साफ करने की कभी हमें फिक्र तक नहीं होती। जिस कुरान की बदौलत अल्लाह ताला ने हमको सबसे अफजल बनाया, उसी कुरान को हमने छोड़ दिया। ना खुद पढ़ रहे हैं, ना तो औलाद को पढ़ने की ताकीद कर रहे हैं। अगर हमारी बच्ची पढ़ना जानती है, तिलावत करना जानती है, माँ चुके पढ़ना नहीं जानती, बाप चुके पढ़ना नहीं जानते, तो वो बेटी जो पढ़ना जानती है उसको भी हम पढ़ने के लिए नहीं कहते। कब पढ़ने के लिए कहेंगे? जब शब बरात आएगी और रमजान का महीना आएगा, उस वक्त हम अपनी बेटी को कहेंगे, बेटी तुर दादो मोरे गए है ना, वहां तना कलाम पाक बख्शुआ हो बेगुदी पढ़े दे। यानी कुरान हमारी इज्म सोचेली जो कुरान खाली मुर्दाला बख्शुआई होवे, केला लोग मोरे गए वहां तना कुरान पढ़ो। जबकि कुरान इसलिए है ताकि हम दुनिया में जिंदगी अल्लाह और अल्लाह को राजी करने के लिए जो आमाल चाहिए वो आमाल करने वाले बन जाए, इसलिए कुरान है। लेकिन उस कुरान को हमने छोड़ दिया। एक वाकया मैं आपको बताता हूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हाफिज साहब को बुलाए, जैसा कि आपके यहाँ कारी ताजिर साहब हैं, इनको जो है अपने यहाँ कुरान खाने के लिए बुलाए। बाप का इंतकाल हो गया कि कुरान पढ़कर बख्शवाना है, तो हाफिज साहब को बुलाए, घर में बुलाए और बुलाकर कहा कि हाफिज साहब मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, आप जो है कुछ कुरान पढ़कर बख्श दीजिए। उसने कहा बहुत अच्छी बात। अब ये हाफिज साहब घर में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं उनके घर में। कुरान पढ़ते पढ़ते घर का मालिक अलमारी खोला और अलमारी खोलने के बाद जो ही दरवाजा लगा रहा था, उस अलमारी से जो है 10,000 रुपए गिर गया, लेकिन मालिक को पता नहीं चला। मालिक जो है किसी काम से घर से बाहर चला गया और हाफिज साहब जो है कुरान पढ़ रहे थे, देखा कि ये पैसे हैं, चुनांचे उन पैसों को उस हाफिज साहब ने कुरान में छुपा कर रख दिया, ये सोचकर कि ये बंदा घर का मालिक इस कुरान को कभी पढ़ेगा तो ये पैसा पालेगा। चुनांचे हाफिज साहब दुआ वगैरह करके घर चले गए, मस्जिद में चले गए। मस्जिद में जाकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 10-12 दिन के बाद उस घर के मालिक को पैसे की जरूरत पड़ी।
चुनांचे जब अलमारी खोलता है तो उस अलमारी में 10,000 रुपए कम पाता है। अब ये परेशान कि ये 10,000 रुपए कहाँ गया। अब ये परेशान होकर अपनी बीवी से डिस्कस किया कि देखो 10,000 रुपए तो कम है, ये 10,000 रुपए किसने लिया। बीवी ने कहा कि मैंने तो नहीं लिया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि हमने नहीं लिया। तो फिर हमारे घर में तो कोई आया नहीं था सिवाय हाफिज साहब के। तो बीवी ने कहा कि ऐसा करो, हाफिज साहब को कहो और हाफिज साहब ये 10,000 रुपए लेकर गए। अब ये घर का मालिक जाता है और हाफिज साहब को जाकर डांटता है और कहता है, हाफिज साहब तुम चोर हो, हाफिज साहब तुम चोर हो, तुम हमारे पैसे चुरा लिए हो। हम तुमको कुरान खाने के लिए बुलाए थे, ना पैसा चुराने के लिए बुलाए थे। हाफिज साहब ने कहा कि क्या हुआ भाई, कि हमारे अलमारी से जिस वक्त आप कुरान खानी करने के लिए आए थे उस दिन हमारा 10,000 रुपए गुम हो गया और हमको नहीं मिल रहा है, और हमारे घर में आपके अलावा कोई और नया आदमी नहीं आया था, लिहाजा आप ही ये 10,000 रुपए लिए हैं। वह हाफिज साहब रोने लगे कि भाई साहब आप मुसलमान हैं। उन्होंने कहा हाँ मुसलमान। कि अच्छा आप कुरान को जानते हैं। कि हाँ कुरान को जानता हूं, उसी की तो कुरान खाने के लिए मैं आपको बुलाया था। कि जब से मैं आया हूं कुरान खानी करने के बाद 10 दिन गुजर गया, क्या आपने कभी कुरान खोलकर देखा। उसने कहा कि नहीं। कि भाई मैं चोर नहीं हूं, मैंने वो 10,000 रुपए कुरान करीम के सफ़ों में छुपा कर रख दिया, इसलिए से कि आप कुरान खोलकर पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कलामुल्लाह को आप पढ़ेंगे, जब वरक को आप पलटेंगे तो कुरान में वो पैसे पालेंगे। लेकिन आपके अंदर ईमानी गैरत खत्म हो गई, आपके अंदर कुरान की अजमत खत्म हो गई। जिस कुरान को पढ़वा कर अपने बाप को बख्शवाना चाहते हो, जिस कुरान को पढ़वा कर अपने दादा को बख्शवाना चाहते हो, जिस कुरान को पढ़ाकर अपने खानदान को बख्शवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ईमानी गैरत कहां चली गई कि वो कुरान तुम्हारे ताक पर पड़ा हुआ है और उस कुरान के पन्नों में ये 10,000 रुपए रखा हुआ है। तुमने कभी कुरान खोलकर नहीं देखा और तुम कहते हो कि हम कुरान खानी करवाकर बड़ा मुसलमान बनना चाहते हैं। ये हमारे कुरान के पढ़ने का हाल है। इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ना जानते हैं हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह इतने लोग पढ़ना जानते हैं। हमारी माँ बहनें भी पढ़ना जानती होंगी, उन लोगों से भी दरखास्त है आप लोग कुरान की तिलावत करें। पूरे कुरान करीम में 30 पारे हैं, उस 30 पारे में 114 सूरत है। कितनी सूरत है ये बयान नहीं, मैं आपसे मुज़ाकरा करने के लिए आया हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, आपको बेदार भी रखना है मुझे। पूरे कुरान करीम में कितने पारे हैं 30, सूरत कितनी है 114 सूरत है। उस 114 सूरत में से 14 नंबर की सूरत का नाम सूरतुन नहल है। सूरतुन नहल, नहल के माना शहद की मक्खी। उस सूरत में चूंकि शहद की मक्खियों का जिक्र किया गया है, इसलिए उस सूरत का नाम ही सूरतुन नहल रख दिया। लंबा वाकिया है वो तो बताना नहीं है, असल यह बताना है कि 14 नंबर की सूरत का नाम सूरतुन नहल है। उस सूरत में 128 आयात है, 16 रुकू है, और जो आयत मैंने पढ़ी है उसी सूरत की पढ़ी है, उस आयत का नंबर है 97। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में दुनिया के एक एक इंसान को बाखबर कर दिया है कि डोहा पारा के रहने वाले हो या ठिकरी बारी के रहने वाले हो, ग्वाल पोखर के रहने वाले हो या फिर कहते हैं आपके चकलिया के रहने वाले हो, बंगाल के रहने वाले हो या बिहार के रहने वाले हो,
इंडिया के रहने वाले हो या पाकिस्तान के रहने वाले हो, बांग्लादेश के रहने वाले हो या आपके जापान के रहने वाले हो, नेपाल के रहने वाले हो या अमेरिका के रहने वाले हो, हर एक इंसान से कहा गया है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मोमिन। अगर कोई मोमिन मर्द औरत नेक आमाल कर ले, अल्लाह ताला बड़ी ताकीद के साथ कहता है फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम ऐसे मोमिन मर्द औरत को, जवान बूढ़े को जो नेक आमाल कर ले, आमाल सालिहा कर ले, तो फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको हयात तय्यबा की जिंदगी अता करेंगे। हयात तय्यबा की जिंदगी अता करेंगे। हयात तय्यबा क्या है? हयात तय्यबा ये है कि आप नेक आमाल करते करते अगर आपकी मौत हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत की जिंदगी अता फरमाएंगे। और अगर नेक आमाल करते करते आप जिंदा रहे, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तब तो फिर आपको कनात की दौलत से नवाजा जाएगा, आपको रिज़्क़ हलाल दिया जाएगा, हलाल रोजी से आपको सैराब किया जाएगा, आपकी जिंदगी के नशो नमा जो होगी वह हलाल रोजी से होगी। जब आप हलाल रोजी आपको तौफीक मिल जाए खाने की, तो उस वक्त याद रखना नेक आमाल करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे लिए दिल नमाज को नहीं चाहता, ज़कात देने को हमारा दिल नहीं चाहता, और नेकी करने को हमारा दिल नहीं चाहता, सच बोलने को हमारा दिल नहीं चाहता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप हलाल रोजी खाने लगेंगे तो याद रखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया हलाल रोजी खाओ और साथ साथ नेक अमाल करते चले जाओगे, नेक अमाल की तुम्हें तौफीक मिलती रहेगी। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। आगे फरमाते हैं वलनुजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। नेक अमाल करने वाले मर्द औरत को, जेंट्स और लेडीज को, हर एक को लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, उसके नेक अमाल का हम जरूर भी जरूर बदला देंगे। इस कुरान करीम की आयत में जो बतलाया गया कि नेक अमाल कर ले, खा मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे किसी जगह का रहने वाला हो, अगर नेक अमाल कर लेगा तो हम उसको हयात तय्यबा अता करेंगे। नेक अमाल है क्या, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। आमाले सालिया कर लो, अल्लाह ताला हमको और आपको हयात तय्यबा अता करेंगे। ये नेक अमाल और आमाले सालिहा है क्या? बहुत सारे आमाले सालिहा है, उनमें से चंद आमाले सालिहा को मैं आपके सामने पेश करता हूं। नंबर 1, ईमान। ईमान सबसे बड़ा नेक अमल है। ईमान से बढ़कर और कोई नेक अमल नहीं है। अगर हमारी और आपकी जिंदगी में ईमान है, ईमान क्या है? ईमान ये है कि हमारे दिल में इस बात का एतकाद और यकीन होना चाहिए कि मेरा माबूद और इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह है, हाजतों का पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, दूसरों की मुश्किलों को पूरा करने वाला, खत्म करने वाला, दफा करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, सूरज को निकलाने वाला अल्लाह है, सूरज को डुबाने वाला अल्लाह है, सूरज को कहता पूरब से पश्चिम की तरफ ले जाने वाला अल्लाह है, बादलों को इधर से उधर चलाने वाला अल्लाह है। ये हमारा दिल में यकीन होना चाहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सच्चा और बरहक रसूल है, बरहक रसूल है। कलिमा ईमान का जो बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को कहता हूं, आपकी बस्ती में बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी, बहुत सारी दादियां ऐसी होंगी, बहुत सारी नानियां ऐसी होंगी,
بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جو آپ کی بستی سے ان کا جنازہ تو اٹھتا ہوگا لیکن اس کی زبان سے کبھی صحیح معنی نہیں انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک سے پڑھا نہ ہوگا اور ان کا جنازہ ایک مسلمان بستی سے اٹھ رہا ہے اور ہم اور آپ نماز جنازہ پڑھ کر اس کو مسلمان کی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وہ دادی مسلمان ہو کر مری ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارا زبان، ہمارا کلمہ ایمان زبان سے ٹھیک سے ادا نہ ہوا تو ہم کہیں کا مسلمان ہے اور کہاں کا مسلمان ہے۔ جبکہ ایک انسان مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ ایمان کے کلمات کو صحیح سے ادا کرے، صحیح سے پڑھے، لیکن ہم اور آپ میں اس کلمہ کے پڑھنے کی نہ تو توفیق ہوتی ہے اور نہ تو پڑھنے اور سیکھنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے۔ ہم نے اس ایمان کو معمولی بنا لیا، جبکہ اس ایمان کے بغیر نہ تو آپ کو جنت ملے گی، نہ تو اس ایمان کے بغیر آپ کو آب کوثر سے پانی ملے گا، نہ تو اس ایمان کے بغیر آپ کو پل صراط سے گزرنے کی توفیق ہوگی، نہ تو اس ایمان کے بغیر آپ آخرت کی تپش اور گرمی سے بچ پائیں گے۔ اسی ایمان کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی ایمان کے کلمہ کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور ہم یہ سوچتے ہیں گوشت کھا لیے، آج گربا ذبح کریے، بہت بڑھیا گوشت، بہت بڑھیا گوشت کرمیا کہنے گرور گوشت کھا جی مسلمان چھونا گرور گوشت ہما مسلمان اللہ تو کھاچی یار کے کھاچی ہائے رے مسلمان ہما کہمت مسلمان گوشت کھوا مسلمان انڈا کھوا مسلمان ماش کھوا مسلمان یہاں نام مسلمان یاد رکھیے یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی گوشت نہ کھائیں لیکن آپ ایمان کا کلمہ پڑھ لیں دل اور زبان سے تو آپ مسلمان ہیں۔ پوری زندگی آپ گوشت کھاتے رہیں اور آپ کی زبان سے اور آپ کے دل سے اگر کلمہ ایمان نہیں نکلا تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس ایمان کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اس ایمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی بندہ ایمان کا کلمہ نہ پڑھے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے اور سچ بھی بولے، جھوٹ سے بچے، زنا نہ کرے، ہر نیک عمل کرے لیکن کلمہ ایمان نہ پڑھے تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا اس کو جنت نہیں ملے گی؟ کیا اس کے نیک اعمال کا کوئی ویلو نہیں ہوگا؟ کیا اس نیک اعمال کا کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ کوئی ویلو نہیں ہے، کلمہ ایمان کے بغیر آپ کتنی ہی نیکیاں کر لو اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو، کوئی ایک آدمی ایک زیرو لگا دے، اس زیرو کی کوئی حیثیت ہے؟ اس زیرو کے آگے اور ایک زیرو لگا دے، کوئی ویلو ہے؟ اس کے بعد اور ایک تیسرا زیرو لگا دے، کوئی حیثیت ہے؟ کوئی ویلو ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن اس تین زیرو کے بائیں سائیڈ میں آپ ایک لکھ دیں تو ان تینوں زیرو کا ویلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا ہو گیا اب؟ 1000۔ جب ایک نہیں لگائے تھے تب تک ان تینوں زیرو کا کوئی ویلو نہیں تھا۔ یہی حال ہے جب تک ہماری زندگی میں کلمہ ایمان نہیں ہوگا تو آپ کتنی ہی نیکیاں کر لو وہ تمام کی تمام نیکیاں صرف زیرو زیرو ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ کلمہ ایمان ہے تو آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے ان نیکیوں کا ویلو بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کلمہ ایمان کی دولت کو سمجھئے کہ اسی ایمان کی دولت سے ہمیں جنت نصیب ہوگی، اسی ایمان کی دولت سے ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اسی ایمان کی دولت سے ہمیں آب کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا، اسی ایمان کی دولت سے وہ پل صراط جس پل صراط کو
जहन्नम के पीठ पर रखा जाएगा और उस पुलसरात का जो सफर होगा 1500 साल का सफर होगा। 1500 साल का चढ़ने में आपका 500 साल लग जाएगा और सीधा गुजरने में 500 साल लग जाएगा, उतरने में आपको 500 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपके और हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो याद रखिए उस जहन्नम, उस पुलसरात, जो पुलसरात तलवार से ज्यादा तेज होगी, बाल से ज्यादा बारीक होगी और वो जहन्नम के पीठ पर रखा जाएगा, उस पुलसरात से हम और आप कैसे गुजर जाएंगे? नहीं गुजर सकते। ईमान नहीं होगा, कट कट कर गिर जाएंगे और उस जहन्नम की खाई में गिरेंगे। वो जहन्नम जिस जहन्नम से नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, कुछ जहन्नम की आग ने जहन्नम से पनाह मांगी है। जहन्नम में एक कुआं है जिस कुआं का नाम जुब्बुल हुज़्न है। जुब्बुल हुज़्न, ये कुआं भी जहन्नम से 400 मर्तबा पनाह मांगता है। कितनी मर्तबा? और हम और आप कितनी मर्तबा पनाह मांगते जहन्नम से? एक को मर्तबा। सोचते हैं जहन्नम से बच जाए, जहन्नम की तकलीफ से बच जाए। याद रखिए जहन्नम की अजाब हल्का अजाब। नबी अलैहिस्सलाम के चचा है अबू तालिब, ये ईमान के बगैर दुनिया से गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हर मोड़ पर खिदमत की, हर मोड़ पर ताउन किया, लेकिन मर गया। मरने के वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब के सरहाने के पास आते हैं और कहते हैं, चचा जान मेरे कान में कलीमा पढ़ दो, मैं आपकी बख्शिश कर दूंगा, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, अल्लाह ताला बख्शिश देगा, आप मेरे कान में कलीमा पढ़ दो। लेकिन उसी मौके पर सरदाराने कुरैश मौजूद थे। अबू तालिब ने कहा, भतीजा तेरा दीन बरहक है, तेरा दीन बरहक है, तेरा मजहब बरहक है, तेरे कलिमा बरहक है, लेकिन इन सरदाराने कुरैश से शर्म आती है, अगर मैं इस वक्त कलिमा पढ़ लिया तो ये लोग कहेंगे डर के मारे कलिमा पढ़ लिया, इसलिए मैं कलिमा नहीं पढ़ता। कलिमा पढ़े बगैर दुनिया से चला गया। सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए, आपके चचा अबू तालिब ने आपके हर मोड़ पर ताउन किया था, हर मोड़ पर उसने खिदमत की थी, क्या उसके अजाब में कुछ तकलीफ होगी? क्या उसका अजाब कुछ हल्का होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिरों के अजाब में सबसे हल्का अजाब मेरे चचा को होगा, मेरे चचा को होगा। सहाबा किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सबसे हल्का अजाब क्या होगा? नबी ने फरमाया, सबसे हल्का अजाब जहन्नम का ये होगा कि उसको आग का चप्पल पहनाया जाएगा, आग का चप्पल पहनाया जाएगा। मेरे चचा अबू तालिब को आग का चप्पल पहनाया जाएगा। जब वो आग का चप्पल पहनेगा तो उसके सर का मगज इस तरह से खटबट 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 करेगा, जिस तरह से एक पानी को हम गरमाते हैं तो वो पानी किस तरह से दूध को गरमाते हैं तो वो खटबट खटबट करने लगता है। इसी तरह से मेरे चचा का मगज इतना खटबट खटबट करेगा, जोश मारने लगेगा। मेरे चचा समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब मुझे हो रहा है, लेकिन हालांकि जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब मेरे चचा को हो रहा होगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा। और सिर्फ ये अजाब उसको क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने ईमान को बचा कर लेकर नहीं गया, कलीमा ईमान के बगैर दुनिया से चला गया, जिसकी वजह से उसको आग की चप्पल पहनाया जाएगा। लेकिन आज हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मेरी दादियों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मेरे दादा चचाओं की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जबान से कलीमा सही से अदा हुआ कि नहीं हुआ, कभी हमने नहीं सोचा। फिरौन की बेटी की माशिता है, कैसा ईमान बचाया था। फिरौन जिसने अना रब्बुकुल आला का दावा किया था, अपने आप को सबसे आला रब कहा था कि मैं सबसे आला और आला क्वालिटी का रब हूं,
خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے کو ماشیتا کہتے ہیں. وہ ماشیتا فرعون کی بیٹی کی بالوں کو سہلاتی تھی, کنگھی کیا کرتی تھی. لیکن وہ ماشیتا مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کنگھی کرتے کرتے ان کی کنگھی ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. جو ہی کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا. فرعون کی بیٹی نے ان سے پوچھا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کا نام لے کر کنگھی کو اٹھایا ہے. اللہ سب کا پروردگار ہے, سب کا معبود وہی ہے, سب کا خدا وہی ہے. فرعون کی بیٹی کہنے لگی خدا تو میرا باپ ہے, رب تو میرا باپ ہے, فرعون سب سے بڑا رب ہے, تو میرے باپ کے علاوہ بھی اور کوئی رب مانتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اس رب کو مانتی ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے, بادلوں کا رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ کا بھی رب ہے, ایک ایک جانور کا رب ہے, ایک ایک چیز کا رب ہے, میں اس رب کو رب مانتی ہوں. وہ کہنے لگی اچھا تو میرے باپ کے ربوبیت کا انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ہاں تیرا باپ رب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ چلو ابا کے پاس چلو. اس ماشیتا کو فرعون کی بیٹی اپنے باپ فرعون کے پاس لے کر جاتی ہے. فرعون سے کہتی ہے ابا جان, یہ ماشیتا جو میرے بالوں کو کنگھی کیا کرتی ہے یہ آپ کے علاوہ دوسرے رب کو مانتی ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. چنانچہ وہ ماشیتا اس ماشیتا سے فرعون پوچھنے لگا, کہنے لگا بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا آسمان و زمین کا جو رب ہے وہ میرا رب ہے, جو تمہارا رب ہے وہ میرا رب ہے, جو تیری بیٹی کا رب ہے وہ میرا رب ہے, جو تمام چیزوں کا رب ہے وہ میرا رب ہے. وہ کہنے لگا, فرعون کہنے لگا اچھا میرے علاوہ تو رب مانتی ہے؟ نے کہا کہ ہاں. اس ماشیتا کی دو بچی تھی, دو بیٹی تھی, ایک بیٹی گود میں اور ایک بیٹی چل پھر لیتی تھی. فرعون نے کہا ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, اس خدا کے خدائی کا انکار کر دو, اس رب کی ربوبیت کا انکار کر دو, اس معبود کی معبودیت کا انکار کر دو اور مجھے رب مان لو. تمہاری جان بھی بچ جائے گی, تمہاری بیٹیوں کی بھی جان بچ جائے گی. انہوں نے کہا فرعون تم کو جو چاہے کرنا ہے کر لو, لیکن میں ایمان لے کر آئی ہوں, اس ایمان کو دنیا سے بچا کر مجھے لے جانا ہے, مجھے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے. تم سے جو چاہے کرنا ہے کر لو, میں ایمان چھوڑنے والی نہیں ہوں. فرعون کہنے لگا تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا. اس نے کہا کہ نہیں, ایمان نہیں چھوڑنے گا, کلمہ پڑھ چکی ہوں, ایمان بچا کر لے جانا ہے. میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, ایمان کو کیسے بچایا جاتا ہے اس واقعے سے اندازہ لگانا. فرعون اپنے لشکروں کو کہتا ہے, اپنے درباریوں کو کہتا ہے آگ جلاؤ اور اس آگ میں تیل کو گرم کرو, اور گرم کرنے کے بعد اس ماشیتا کو بلایا جائے گا. چنانچہ فرعون کے درباریوں نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد تیل کو گرمایا گیا. وہ تیل گرم کے مارے کھدبت کر رہا ہے. فرعون اس ماشیتا کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے بتاؤ تم کو اپنے ایمان پیارا ہے یا جان پیاری ہے؟ تمہاری اپنی اس بیٹی جو چلتی پھرتی بیٹی ہے, اس بیٹی کی جان پیاری ہے یا تمہارا ایمان پیارا ہے؟ وہ کہنے لگی فرعون میری بیٹی کیا, تم میری جان بھی اگر تم اس تیل میں
जला कर भून भी दोगे ना तो मैं अपना ईमान छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं अपना ईमान बचा कर रब के पास जाऊंगी। फिरौन कहने लगा अच्छा। चुनांचे उसकी चलती फिरती बेटी को, वो चलती फिरती बेटी, एक बेटी अगर चलती फिरती चल रही हो, पैरों से कभी गिरती हो कभी उठती हो, अगर वो बच्ची खूबसूरत बच्ची चल रही हो तो चाहे उस बेटी का बाप ना हो, एक अजनबी आदमी भी देखेगा तो उसको गोद में उठाने की कोशिश करेगा और अपने गोद से चिपकाने की कोशिश करेगा। फिर उस माशिता की उस चलती फिरती बेटी को पकड़ता है और पकड़कर उसका गर्मा हुआ तले तेल में उस बेटी को डाल देता है। डालने के बाद उसकी वो बेटी बिल्कुल इतना जैसे मछली तला जाता है, बिल्कुल वो बेटी तल जाती है। चुनांचे उसकी माँ से आंखों से आंसू जारी हो जाता है। उसकी माँ रोती है, अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह आज तेरे ऊपर ईमान लाने की वजह से आज मेरी बेटी को मेरे नजरों के सामने तेल में भून दिया गया है। फिर उन्होंने कहा माशाअल्लाह तेरी एक बेटी को तो हमने भून दिया, अगर तुम्हारी गोद की बेटी को बचाना चाहती हो, तो ईमान छोड़ दो, मुझे रब मान लो, खुदा की खुदाई का इनकार कर दो। वो माशिता कहने लगी फिरौन मेरी एक बेटी तो चली गई लेकिन मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती। मैं अगर तेरे रब के रुबूबियत का, तेरे रब होने का इकरार भी कर लूं तो मेरी वो तली हुई बेटी तो वापस नहीं आएगी, मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती। फिरौन को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद उसकी गोद की बेटी को छीनता है और छीनने के बाद उस गर्मा हुआ तेल में फिरौन माँ के सामने उस बच्ची को डाल देता है। चुनांचे वो गोद की बच्ची उस गर्म किए हुए तेल में चूही डाली जाती है तो वो भी तल जाती है, जान चली जाती है, माँ की आंखों से आंसू जारी होता है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज हमने ईमान को कितना सस्ता सौदा समझ लिया है, हमने कलिमा ईमान को कितना सस्ता सौदा समझ लिया है। यहाँ तो देखो माशिता को देखो, उनकी दोनों बेटी को गरम तेल में डाल दिया गया। गरम तेल में डालने के बाद इसकी माँ से रहने गया, उसकी माँ तड़प जाती है। जिस माँ के सामने उसकी दो बेटी को गरम तेल में डाला जाए, उस बेटी के दिल में क्या गुजर रहा होगा। आज वो माशिता उसने गम में मुब्तला होकर गिर जाती है, होश आता है। फिरौन फिर कहता है, इसके ईमान का इम्तिहान लेता है और कहता है माशिता तेरी दो बेटी तो चली गई, अब मौका है, आजा ईमान को छोड़ दे, अपनी जान बचा ले। वो कहने लगी फिरौन तूने मेरी दो बेटियों को आग में गर्म किए हुए तेल में डाल दिया, उस वक्त मैंने ईमान नहीं छोड़ा। अब तो मेरी कोई औलाद ही नहीं है, अब तो मेरी कोई बेटी ही नहीं है। अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना तो अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ूंगी, कभी कलीमा ईमान का इनकार नहीं करूंगी। फिरौन को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद उसको लिटाता है। लिटाने के बाद उसके हाथ में कील मारता है, दोनों हाथ में कील मारता है, दोनों पैर में कील मारता है, पेट में कील मारता है, तड़पाता है, खूब तड़पाता है। और ये अल्लाह अल्लाह कहती है, लेकिन फिर भी ईमान को नहीं छोड़ती।
जब सता सता कर फिरौन थक जाता है तो अपने दरबारियों को हुक्म देता है, जाओ इस माशिता को भी गरम तेल में डाल दो। चुनांचे उसको भी तेल में डाल दिया जाता है, वो भी तल जाती है। चुनांचे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब आगे इस वाक़या को लिखते हैं, यहाँ तक तो वाक़या को लिखा है तफसीर बगवी में। आगे मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज को गए हैं, मेराज के सफर में गए हैं, सातों आसमान से आगे गए हैं, सातों आसमान से ऊपर गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे हैं। सिदरतुल मुंतहा पहुंचने के बाद जन्नत से खुशबू आने लगती है। चुनांचे जन्नत से खुशबू आने लगी, अंबर से ज्यादा अच्छी खुशबू आने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कहां से खुशबू आ रही है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया जन्नत से खुशबू आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल ये खुशबू किस वजह से आ रही है? जिब्राइल ने कहा मुझे मालूम नहीं, रब से पूछता हूँ। चुनांचे रब से पूछते हैं, अल्लाह ताला से जिब्राइल पूछते हैं, ऐ मेरे रब ये तो बता दीजिए इतनी अच्छी खुशबू जो जन्नत से आ रही है किस वजह से आ रही है? चुनांचे अल्लाह ताला ने जिब्राइल को बतलाया, जिब्राइल मेरे महबूब को जाकर बतला देना, मेरे महबूब को जाकर बतला देना। फिरौन ने जिस माशिता की दो बेटियों को और माशिता को गरम तेल में डालकर तल दिया था, उसकी रात को जन्नत में रखा गया है और उसकी रात से ये खुशबू आ रही है, उसकी रात से खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, हमने ईमान को मामूली समझ लिया। ये ईमान मामूली नहीं है, ईमान को बचा कर ले जाना हम मुसलमानों पर जरूरी है अगर हम कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हैं। दूसरा अमल सालेह, इसलिए ईमान का कलिमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। हाफिज साहब से कहलवाइए, नमाज पढ़ने के लिए आइए और कहिए हाफिज साहब मेरा कलिमा ठीक कर दो। जो बच्चियां पढ़ने जाती है उस बच्ची को कारी साहब पढ़ाएंगे, कलिमा को ठीक कराएंगे और वो बच्ची अपने माँ बाप, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी दादी का, अपनी फूफी का कलिमा सही तौर पर अदा करवाए ताकि कलिमा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा हो जाए। ईमान के कलिमात का सही से अदा होना भी ये भी फर्ज है। दूसरा अमल साले नमाज। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमारा और आपका वक्त मोबाइल में तो कट जाता है, हमारा और आपका वक्त गिबतों में तो कट जाता है, हमारा और आपका वक्त फालतू गुफ्तगू में तो कट जाता है, हमारा और आपका वक्त रास्ते में खड़े खड़े तो गुजर जाता है। लेकिन नमाज का वक्त आता है, मौज़िन अज़ान पढ़ता है, लेकिन हमें नमाज की तौफीक नहीं मिलती। हमने नमाज को मामूली समझ लिया। ईमान के बाद सबसे अफजल अमल अगर कोई है तो वो नमाज है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने के गवर्नरों को खत लिखा और फरमाया कि देखो इंदा अहम्मा उमूरी इंदिया सलाह, कि मेरे नजदीक तमाम कामों में सबसे अहम काम नमाज, नमाज की पाबंदी करना। हमने नमाज को मामूली समझ लिया, हर काम कर लेंगे, मेहमान जाना तो हमारा छूटेगा नहीं। आज पूरी बेटी शादी, आज मेरे बहन शादी, आज मेरे खाला शादी, आज मेरे भाई शादी, शादी में गोल भात खा खा के नमाज तो हमारा छुटिया है। लेकिन कभी हम आईरा नहीं सोची दे नमाज शादी से बढ़कर, नमाज मेरे भाई से बढ़कर, नमाज मेरे बहन से बढ़कर, नमाज मेरे खाला से बढ़कर, नमाज मेरे भाई बहन फूफी दादी बाप माँ बाप हर एक से बढ़कर है। इसलिए कि कल क़यामत का दिन होगा, ऐ मेरी माँ और बहनों, एक एक नेकी के लिए तरस जाएंगे, एक एक नेकी के लिए अल्लाह कहेगा तुम्हारे पास हर नेकी मौजूद है, एक नेकी लेकर आ जाओ, आज मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। चुनांचे वो माँ उठेगी और बेटे के पास जाएगी और बेटे से कहेगी, बेटा तुमको मैंने लाडो प्यार से पाला था, ऐ बेटा मैंने तेरे पेशाब पाखना को साफ किया था, और बेटा मैंने तेरे लिए हर मुश्किल को
सह लिया था, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, बेटा एक नेकी दे दो। बेटा कहेगा तू मेरी माँ है, मैं तो पहचानता नहीं। फिर वो जाएगी अपने बहन के पास जाएगी, बहन से कहेगी ओ मेरी प्यारी बहन, एक साथ एक बिस्तर में सोती थी, क्या क्या गुफ्तगू करती थी, मोहब्बत के साथ रहती थी, आज मुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई है, एक नेकी दे दो। तो बहन कहेगी तू मोर बती हो मोर भाई, हो नहीं सकता। फिर वो जाएगी अपने भाई के पास, बाप के पास, चचा के पास, हर एक नेकी देने से इनकार कर देंगे, हर एक नेकी देने से इनकार कर देंगे। भाई की शादी में हमने नमाज गवा दिया, अगर उसी नमाज के बारे में अल्लाह ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया कि उस दिन शादी हो रही थी, अगर तुम उस वक्त की नमाज पढ़ लेती, उस दिन की अगर तुम नमाज पढ़ लेते, आज मैं तुम्हें जन्नत में दे देता, उस वक्त कितना अफसोस होगा, कितना अफसोस होगा। हम तो अल्लाह से डरे नहीं, लेकिन बेनमाजी से कब्र भी डरती थी, जमीन भी डरती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। एक बुढ़िया एक बर्तन में तेल लेकर जा रही थी, ठोकर लगी और वो तेल जमीन में गिर गया। जमीन में गिरने के बाद वो तेल, उस तेल को जमीन ने चूस लिया। जो ही जमीन ने चूसा तो बुढ़िया फौरन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आती है और कहती है उमर अमीरुल मोमिनीन, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है, मुझे तेल दिलाइए। हजरत उमर ने फरमाया दरबारों से, दरबान से कि दे दो, बैतुल माल से इसको तेल दे दो। वो कहने लगी नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो तेल मेरा जमीन में गिरा है मुझे यही तेल चाहिए, उस तेल के अलावा मुझे कोई तेल नहीं चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वही तेल ले लो, वो तेल तो जमीन ने चूस लिया। उसने कहा कि नहीं मुझे वही तेल चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पर्ची देते हैं, एक पर्ची में कुछ लिखते हैं और लिखकर उस बुढ़िया से कहते हैं ए बुढ़िया ले जा, इस पर्ची को जहां तुम्हारा तेल गिरा था, जमीन के जिस हिस्से ने उस तेल को चूसा है, वहां इस पर्ची को ले जाकर रख देना। चुनांचे उस बुढ़िया ने उस पर्ची को उस जमीन के हिस्से में ले जाकर रख दिया जिस जमीन के हिस्से ने उस तेल को चूस लिया था। चुनांचे जो ही उस पर्ची को रखा गया तो जमीन ने भी अपना चूसा हुआ तेल बाहर करने लगा, उबालने लगा, उस तेल को बाहर कर दिया और उस बुढ़िया ने अपने बर्तन में उस तेल को भर लिया। चुनांचे लोगों ने माजरा देखा और माजरा देखकर बड़ा ताज्जुब में पड़ गए कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है कि इस पर्ची के रखते रखते ही जमीन ने अपना चूसा हुआ तेल वापस कर दिया। चुनांचे उस पर्ची को खोला गया, उस पर्ची को खोला गया। ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे भाइयों सुनो, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उस पर्ची में हजरत उमर ने लिखा था ए जमीन, इस बुढ़िया के तेल को जल्दी से वापस कर दे, अगर तुमने वापस नहीं किया तो तुम्हारे उस हिस्से में बेनमाजी को दफन करूंगा, बेनमाजी को दफन करूंगा। बेनमाजी से डरकर उस जमीन ने अपना चूसा हुआ तेल भी बाहर कर दिया। और हम नमाज को क्या समझ लिए? मामूली। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर औरत 4 काम कर ले तो जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाए। कितने? 4 लाख नहीं, 4000 नहीं, 400 नहीं, 40 नहीं, कितने? 4 फोरली 4 काम अगर कर ले, नबी ने फरमाया कि अगर मोमिन मर्द औरत अगर 4 काम कर ले तो उनके लिए जन्नत है, उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चुनांचे पहला काम नबी ने जो बयान फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा,
कि औरत नमाज पंजगाना पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा करते हैं इंशाअल्लाह पढ़ेंगे? माशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। कारी साहब हाजिरी लीजिए। संजय जी 2 दिन के बाद फिर जलसा कीजिए, मुझे बुलाइए, पूछेंगे। और इन माँ बहनों के यहाँ भी मेहमान चले जाएंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आप नमाज शुरू किए कि नहीं किए। कल से इंशाअल्लाह नमाज शुरू कर देना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए आज जलसा क्यों किए? क्यों किया जलसा? जलसा करने का मकसद, जलसा करने वाले कौन लोग हैं? हाथ उठाइए। ये मकसद जब पूछा जाएगा हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि पता नहीं है ना मकसद। तो किस मकसद से जलसा किए? इमाम साहब कहेगा, हम लोग नहीं कहेंगे। मकसद यही था कि हमारा जो है काम है अल्लाह ताला का दीन जिंदा हो जाए, दीन जिंदा हो जाए, कलीमा पढ़ने वाले बन जाए, नमाज पढ़ने वाले बन जाए, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाए। इसलिए जलसा किया गया है। और अल्लाह राजी होता है कैसे? आमाल से, नेक अमल से। उनमें सबसे बड़ा नेक अमल नमाज है। आज ईशा की नमाज किस किसने पढ़ी? हाथ उठाइए। ये अब अल्लाह कैसे राजी होगा? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी माँ और बहन तो हाथ ही नहीं उठाए, क्योंकि वाला जान से हम आप नहीं पढ़ी, हम आप नहीं पढ़ी। नहीं, सबको पढ़ना है इंशाअल्लाह। अलमरतु इज़ा सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। और मर्द के बारे में भी नबी ने फरमाया सल्लू खमसकुम, मर्द हजरात 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। तो नमाज पढ़नी है। तीसरा नेक अमल, रमजान का महीना आएगा, रमजान के महीने का रोजा रखना है। वो सामत शाह रहा, औरत का दूसरा काम रमजान के महीने का रोजा रखना है। आजकल वो जवान लड़की होती है, सेहत अच्छी होती है, लेकिन वो माँ बाप लड़की को चाहे बेटी रोजा रखेगा। अगर रोजा रख लो तो गाल तल्ला पिस के जाए, कोई लड़का नहीं पसंद करता। हाय रे खुदा, एक फर्ज अमल करने से आपकी सूरत बदल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उस नमाजी को देखो जो नमाजी रातों दिन नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ता है, कितना काला कलोटा होगा। वो आपके रास्ते से गुजरेगा तो उसके चेहरे में आपको चमक मालूम होगा, इसलिए कि नमाज की रोशनी, नमाज की चमक दमक उसके चेहरे पर जाहिर होगी। और आप सोकर उठेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपका चेहरा कितना ही आप गोरा हो, लेकिन आपके चेहरे में मनहूसियत छा जाएगी, मनहूसियत छा जाएगी। आप लगे। आप दूसरा जब देखे कैसा घ्याकमा लोग, घ्याकमा और घेकमी सवा को पाक साफ की। इसलिए नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह, नमाज पढ़नी। तो तीसरा काम रमजान के महीने का रोजा रखना है। बहाना बना कर रोजा को नहीं छोड़ना है। और बहुत सारे मर्द हजरात भी आजकल जवान हजरात भी की करबो भाई लोटिया व्यापारी আসতে লাগছে पानी गान देखो ना तो स्पीडो आशा, इसलिए रोजा रखो ना। और अगर डॉक्टर टाइरा कर दे नो तोर तबियत खराब है तो गोटाए दिन ना भूखे रहो, तब जने तोर का बीमारी ठीक होते। अगर डॉक्टर टाइरा कर दे नो तो दिन को खावानी होबे, गोटाए दिन ना भूखे रहो और शाम करे बेला डुबोर बाद अगर खावो तो तोर तबियत का ठीक होबे, वरना ठीक नहीं होबे। डॉक्टर ने बात मानवन है, आई मानवन ना नहीं मानवे, के मानवन हाथ उठाओ दी, कोई नहीं मान। ऐसा कैसे हो सकते? पहले तो मियां माने लो, इसलिए कि मुझ सेहत का अपना तंदुरुस्ती से बचाना छे, अपना जान डर बचाना छे। चाहे तुम ना बोलो, लेकिन दिल का हीरा को जब माने लो, लेकिन बोल से नहीं डर है। लेकिन डरवर कोई जरूरत नहीं है। हकीकत ये है कि डॉक्टर
একটা गैर मुस्लिम डॉक्टर अगर हमार परहेज करवाते नहीं गोटे दिन अगर भोगे रवा कोई तो हमारी इधर बात तो माने ले मो लेकिन अल्लाह को चे अल्लाह रसूल को चे अल्लाह नबी साहबाला को चे कि रोजा रखवा लगे रोजा रखना फर्ज है सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना नहीं करवा हवे लेकिन वहर बावजूद हम अल्लाह हुक्म तो छोड़ दीजिए लेकिन हमार डॉक्टर के बात मान लीजिए होचे ना नहीं होचे आ तीसरा काम हसनत फर्जहा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना अपनी इज्जत और नामोस की हिफाजत करना अपनी ईमान को बचाना गुनाहों की वजह से अपनी इज्जत को बर्बाद मत करना ए मेरे जवानों ए मेरी जवान बहनों अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हसनत फर्जहा शर्मगाह की हिफाजत करना अपनी इज्जत और नामोस की हिफाजत करना तो तुम जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और अगर तुमने इज्जत की हिफाजत नहीं की तो याद रखना तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले नहीं जाएंगे मेरी मां और बहनों आज हमारा यह हाल है हम अपनी इज्जत का पामाल कर रही हैं रास्ते से गुजर रही हैं और अपना लिबास ऐसा होता है कि आपका पूरा का पूरा हाथ खुला रहता है और एक अजनबी मर्द आपका हाथ देखता है और आप ये सोचते हैं कि अपने जिस्म की खूबसूरती हम दिखा रहे हैं कपड़ा पहनती है और कपड़ा पहनती है कभी कभी खेत में जाती है तो कपड़ा को इतना उठा लेती है जैसा कि मर्द उठाता है और सोचती है कि हमने अच्छा काम कर लिया याद रखना आपके जिस्म के एक एक हिस्से का पर्दा वाजिब और फर्ज है जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है इसी तरह से आपके ऊपर पर्दा फर्ज है आप अपने चेहरे की नुमाइश कर रही हैं अपने चेहरे के दीदार करा रही हैं और सोच रही हैं कि हम जन्नत में चली जाएं आप गैर मर्दों के साथ बैठकर इश्किया बातें करेंगी जिना की बातें करेंगी बदकारी की बातें करेंगी जबकि दो अजनबी मर्द औरत का एक साथ जमा होना जायज ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप बैठती हैं अपने चेहरे खुला रखती है अपना हाथ खुला रखती है अपना पेट दिखाती है और सोचती है कि हमारे लिए जन्नत का 8वां दरवाजा खोल जाए नहीं खुलने वाला मेरे नबी ने फरमाया औरत को 4 काम करना है नंबर 1 नमाज पढ़नी है नंबर 2 रोजा रखना है नंबर 3 वह हसनत फर्जहा अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है आप जिस कुर्ता को पहनती है ब्लाउज को पहनती है उसी ब्लाउज से आप पर्दा कर सकती हैं ब्लाउज की आस्तीनों को आप बढ़ा दें आप आस्तीन को यहाँ तक बनाती है अगर आपने आस्तीन को यहाँ तक बनवा लिया आपकी इज्जत नहीं घट जाएगी आपकी इज्जत नहीं चली जाएगी आपकी और इज्जत बढ़ेगी आप ब्लाउज का इतना कद करते हैं कि आपका पेट और पीठ दिखाई पड़ता है सीना दिखाई पड़ता है आप ब्लाउज का गोल ब्लाउज सिलाइए और आपके ब्लाउज का हिस्सा बढ़ा दीजिए ताकि आपका पेट नजर ना आए पीठ नजर ना आए आपका गर्दन नजर ना आए ए मेरी मां और बहनों अपनी इज्जत को बचाओ अगर इज्जत को आपने नहीं बचाया तो याद रखना जन्नत के दरवाजे आपके लिए नहीं खोले जाएंगे और अगर आप अपनी इज्जत को बचाने में आ जाए चाहे कितना बड़ा जालिम आ जाएगा आप अपनी इज्जत को बचा कर रखेंगी अल्लाह ताला आपकी इज्जत को बचाएगा एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ फजाइल अमाल 478 सफा में जिल्द जो दूसरी जिल्द है फजाइल सदकात फजाइल हज में इस वाकये को लिखा है एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि काबा में तवाफ के दौरान एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर
रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है और अल्लाह से कह रही है, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने उस वक्त मुझे बदकारी से बचा लिया। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने उस वक्त बदकारी से बचा लिया। रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है और अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रही है। ये बुजुर्ग तवाफ करते करते उस औरत पर निगाह पड़ गई। वो बुजुर्ग रुक गए और रुकने के बाद उस औरत से कहा, ए बहन ये तो बता वो कौन सा वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हें बदकारी से बचा लिया था और तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो। वो कहने लगी ए अल्लाह वाले मेरा वाक़या अजीब व गरीब है कि सुना दो। चुनांचे वो औरत कहती है, वो वाक़या सुनाती है कि मैं और मेरे साथ बहुत सारे मर्द हजरात एक कश्ती पर सवार हुए। जब कश्ती बीच दरिया में जाती है, बीच दरिया में जाने के बाद वो कश्ती पलट जाती है। उस कश्ती के तख्ते अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कश्ती में जितने लोग सवार थे सारे लोग उस दरिया में गिरकर डूब कर मर जाते हैं। मैं और मेरा बच्चा एक तख्ता पर सवार थे और एक हबशी आदमी दूसरा तख्ता पर सवार था। हम तीनों सिर्फ डूबने से महफूज रह गए थे, बाकी सारे लोग डूब गए थे। आगे का वाक़या सुनना मेरी माँ और बहनों। जब अपनी इज्जत को आप बचाने में आती है तो अल्लाह की मदद कैसे आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इज्जत को कैसे बचाता है। चुनांचे वो औरत कहती है कि मैं एक तख्ता पर अपने बच्चे को लेकर तैर रही थी और वो हबशी आदमी, हबशा का रहने वाला काला कलोटा दूसरे तख्ता पर सवार था। चुनांचे उस तख्ते पर सवार वो हबशी आदमी मेरे करीब आकर कहने लगा कि आजा, मुझे तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, मुझे तुमसे जिना करना है, मुझे तुमसे बदकारी करनी है, इसी दरिया के बीच दरिया में करनी है, आजा। वो औरत कहती है, मैंने उस हबशी आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के अज़ाब से डर। अल्लाह का इतना बड़ा अज़ाब आया कि तुम और मेरे अलावा कोई इस कश्ती में जिंदा नहीं बचा है। सारे को अल्लाह ताला ने इस दरिया में डुबो दिया है और तुम इस मुसीबत की घड़ी में जिना करना चाहते हो, बदकारी करना चाहते हो। अल्लाह से डरो। वो हबशी कहने लगा, नहीं ये बकवासें बंद करो, मुझे आज तुमसे जिना करना है। वो औरत कहती है, मैंने उस हबशी से कहा कि आज मैं शायद कि इस बदकारी से बच नहीं पाऊंगी। अल्लाह से कहने लगी, ये अल्लाह, ये मुसीबत की घड़ी में कैसे गुनाह का वक्त आ गया है कि मुझे गुनाह करना पड़ रहा है। कभी मैंने जिना नहीं किया, कभी मैंने बदकारी नहीं की, कभी मैंने मुंह काला नहीं किया, लेकिन आज इस बीच दरिया में ये हबशी आदमी से जिना करना चाहता है। तो ये औरत उस हबशी आदमी से कहती है कि देख भाई, अल्लाह से डरो। उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो मैंने उनसे कहा, ऐसा करो, मेरा ये दूध पीता बच्चा है, मैं अपने बच्चे को दूध पिला लूं, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है कर लेना। चुनांचे औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी, दूध पिला रही थी। इतने भी हबशी आदमी अपने तख्ता को इतना तेजी से मारा कि उस औरत के करीब पहुंच गया और करीब पहुंचकर उस दूध पीते बच्चे को उस औरत से छीन कर दरिया में फेंक देता है। चुनांचे दरिया में फेंकने के बाद ये हबशी आदमी इस औरत के आगे बढ़ता है, उस औरत के पास और करीब आने की कोशिश करता है। जो ही करीब आने लगता है, एक समंदर का बड़ा जानवर उस समंदर से निकलता है और समंदर से निकलकर उस हबशी आदमी को अपने मुंह का लुकमा बना लेता है और लुकमा बनाकर अपने पेट के अंदर उस हबशी आदमी को कर लेता है और इसी औरत की उस बदकारी के गुनाह से वो औरत बच जाती है। ए मेरी मां और बहनों,
جب اس عورت نے اللہ سے فریاد کی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے فریاد کرتی رہی، تو اللہ نے کیسی مدد نازل فرمائی کہ ایک سمندر کا جانور آتا ہے اور اس حبشی آدمی کو اپنے منہ کا لقمہ بنا لیتا ہے اور منہ کا لقمہ بنا کر اس کو دریا کے نیچے لے جاتا ہے اور اس عورت کی جان بچ جاتی ہے، گناہ سے بچ جاتی ہے۔ یہ عورت کہتی ہے اس حبشی آدمی کی گناہوں سے، بدکاری سے تو میں بچ گئی، لیکن میرا بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ چنانچہ میں اپنی اس تخت کو تیرتا تیرتا جزیرے میں پہنچ گئی۔ جزیرہ کہا جاتا ہے وہ خشک علاقہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، جس کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچوں تو اگر ڈانگی سے ڈانگی تو وہاں پہنچے جزیرہ۔ تو یہ عورت کہتی ہے میں جزیرہ میں پہنچ گئی۔ جب جزیرہ پہنچ گئی تو جزیرہ پہنچنے کے بعد میں اپنے تختہ سے اتری اور جزیرہ میں دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ تو اس عورت کہتی ہے، اس بزرگ کو قصہ سناتی ہے، کہتی ہے کہ جزیرہ میں پہنچنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہاں کے اس جزیرہ کے درختوں کو اور گھاس کو کھا پی کر زندگی بسر کر لوں گی، جب تک زندہ رہنا ہوگا زندہ رہوں گی، اس کے بعد موت آ جائے گی، اور اگر کوئی ادھر دریا میں آئے گا تو ان سے کہوں گا کہ مجھے لے جائے۔ چنانچہ وہ جزیرہ میں رہی۔ جزیرہ میں رہتے رہتے اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دریا میں ایک کشتی پر کچھ لوگ سوار ہیں، تو کشتی کو بلانے والے، کشتی والے کو بلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لال کپڑا، پہلے زمانے میں لال کپڑا کنارے میں اس طرح سے لہرانا پڑتا تھا، وہ کشتی والا سمجھ جاتا تھا کہ ہمیں بلا رہا ہے۔ چنانچہ عورت اپنے لال کپڑے کو دوپٹہ کو اس طرح سے ہلانے لگی، کشتی والا سمجھ گیا کہ عورت اس کشتی پر سوار ہونا چاہتی ہے۔ چنانچہ دو آدمی ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرہ کے قریب پہنچتا ہے اور جزیرہ کے قریب پہنچ کر اس عورت کو سوار کرتا ہے۔ اس عورت کو سوار کرنے کے بعد بڑی کشتی میں لاتا ہے، اور بڑی کشتی میں لانے کے بعد وہ عورت دیکھتی ہے اپنا وہ بچہ جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی تھی، اور دودھ پلاتے پلاتے اس حبشی آدمی نے دریا میں ڈال دیا تھا، اسی بچے کو اس کشتی میں بیٹھا ہوا پاتی ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے اپنے بچے کے اوپر گر جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور بچے کو چمٹا کر کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گئی، پاگل ہو گئی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو جزیرے میں رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی تم لوگ مانو نہ مانو یہ میرا بیٹا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا میرا واقعہ سن لو، میرا واقعہ سن لو۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ دودھ پیتے بچے کو اس حبشی آدمی نے دریا میں ڈال دیا تھا، دریا میں ڈال دیا تھا۔ میں تو سوچی کہ میرا بچہ ڈوب کر مر گیا ہے، لیکن تمہارے کشتی میں سوار دیکھ رہی ہوں۔ کشتی والے نے کہا تیرا واقعہ تو عجیب و غریب ہے، لیکن سن لے ہمارا واقعہ بھی بہت زیادہ عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا سنے عورت، تمہارا یہ واقعہ کہ اس بچے کو حبشی نے دریا میں ڈال دیا تھا، لیکن جس بچے کو، تمہارے بچے کو دریا میں ڈالا گیا تھا، تم تو ادھر چلی گئی تھی، ہماری کشتی وہاں قریب پہنچی تھی، ایک بڑا سا جانور اس بچے کو منہ میں لے کر ہمارے کشتی کے قریب آیا، اور کشتی کے قریب آ کر اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، اور اس جانور نے کہا اس بچے کو اپنی کشتی پر سوار کر لو، اگر سوار نہیں کیا تو کشتی میں جتنے لوگ ہو سب کو ڈوبا دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اس ڈر کے مارے اس جانور کے منہ سے اس بچے کو اپنی اس کشتی پر سوار کرایا ہے، اور وہی بچہ ہے، اور وہ جانور چلا گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو
गुनाह करना चाहता है, मुसीबत की घड़ी में भी उनको गुनाह याद आता है, उसको तो अल्लाह हलाक को बर्बाद करता है। लेकिन जो गुनाहों से बचना चाहता है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है, तो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाता है और उसके बच्चे की भी हिफाजत फरमाता है। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत करना। 34वां काम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। नंबर 2, रमजान के महीने का रोजा रखना है। नंबर 3, वह हसनत फर्जहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। नंबर 4, वह अताअत बालहा, शोहर की फरमाबरदारी करनी है। और शोहर करना इधर से बीवी तक मारना है। औरतों का काम शोहर की फरमाबरदारी और मर्दों का काम बीवी ठुकाई नहीं। आम मर्दों के ऊपर भी बीवी का हक है और बीवी के ऊपर शोहर का हक है। दोनों के ऊपर जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के हक को अदा करें। अगर इस हक को अदा नहीं किया, कल कयामत के दिन आपके पास सारी नेकियां होंगी और अल्लाह ताला कहेगा सिर्फ तुम्हारे पास एक कमी है कि तुमने बीवी का हक अदा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला है। और अगर औरतों ने अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी नहीं की, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास सारी नेकियां है, काश अगर तू दुनिया में शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर लेती तो आज तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये 4 काम करना है। 5 वक्त की नमाज, रमजान का रोजा, अपनी इज्जत की हिफाजत, शौहर की फरमाबरदारी। और मर्द हजरात से भी अल्लाह के नबी ने 4 काम बतलाया। नंबर 1, सल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। वसूमू शहरकुम, रमजान का रोजा रखना है। वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, अपने माल का ज़कात देना है। नंबर 4, वअतियू ज़ा अमरिकुम, अपने उलमा की, अपने अकाबिर की, दीनदार लोगों की, जी अमर जो दीन की सरबराह लोग हैं, उन लोगों की फरमाबरदारी करना है। अगर मर्द हजरात ये 4 काम कर ले, नबी फरमाते तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में प्रवेश करोगे। तुम अपने रब की जन्नत में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, दाखिला हो जाएगा, तुम दाखिल हो जाओगे। लेकिन ये 4 काम करना पड़ेगा। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, वक्त काफी हो गया, 12 बज गया, हजरत शेख पहुंच चुके हैं। हजरत के सामने बैठकर बयान करना ये बेअदबी भी मालूम होती है। इसलिए अल्लाह ताला जो बात भी मुझे कहलवाई है और आपको अल्लाह ने सुनने की तौफीक दी है, उन बातों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अमल के इरादे से उठेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे देगा। और अगर आप अमल का इरादा ही नहीं करेंगे तो अमल की तौफीक नहीं मिलने वाली। इंसान, बच्चा, छोटा सा बच्चा साइकिल चलाने का इरादा करता है, साइकिल चलना सीख लेता है, साइकिल चलाना सीख लेता है। मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, इरादा करता है, मोटरसाइकिल चला लेता है। ए मेरे भाइयों, ए मुझसे मुसलमान भाई बहनों, अगर हम नमाज पढ़ना चाहें, पढ़ने का इरादा कर लें, तो क्या नमाज पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रात का 12 बज गया है, रात का 12 बज गया है। इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ गया है और आसमान दुनिया पर अपनी रहमतों को बंदों की तरफ मुतवज्जे कर दिया है। और अल्लाह ताला ऐलान करता है, ऐ बंदा, है तुम में से कोई गुनाहों की मगफिरत करने वाला? गुनाहों की मगफिरत मांग ले, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। है कोई जिना से तौबा करने वाला? वो अगर तौबा कर ले तो उसकी तौबा मैं कबूल कर लूंगा। है कोई झूठ से गुनाह करता तौबा करने वाला? मैं उसके झूठ की गुनाहों को माफ कर दूंगा। है कोई किस्म किस्म के गुनाह करने वाला? अगर वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसके माफी को कबूल करके उसके
गुनाहों को बख्श दूंगा। है कोई औलाद मांगने वाला कि मैं उसकी औलाद दे दूंगा। है कोई मुसीबत को दूर करने की दुआ मांगने वाला, मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे है, इसलिए हम और आप 2-3 मिनट का अमल मैं कराता हूँ, उस अमल को कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें, सारे हजरात बंद कर लें, मेरी माँ और बहनें भी बंद कर लें, मेरे भाई भी बंद कर लें, हर एक स्टेज में बैठे हुए हर लोग आंखों को बंद कर लें। और बंद करके कोई भी आदमी आंखों को ना खोलें। ये देखिए बड़े मियाँ आंखों को बंद नहीं किए हैं, आंखों को बंद नहीं किए हैं। ये मेरी माँ और बहनों में भी कुछ ऐसी हैं जो आंखों को बंद नहीं की है। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और सोचिए मेरी मौत हो गई है, मेरी मौत हो गई है, मैं मर गया, मेरी रूह निकल गई है, मेरी मौत का ऐलान बस्ती में हो गया, मेरे रिश्तेदारों में भी ऐलान हो गया, मोबाइल के जरिए हरेक को इत्तला कर दी, मेरी बहन का, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। सारे लोग मौत की खबर सुनकर जमा हो जाते हैं। मेरी और आपकी लाश को, मेरी और आपकी लाश को कपड़ा उठा उठा कर चेहरा देखते हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, माँ कह रही है बेटा, बहन कह रही है भाई, बाप कह रहा है बेटा, चचा कह रहे भतीजा कहाँ चला गया, बोलो ना, बोलो ना, तुम तो बहुत बोलते थे, बोलो ना। ज़बान बंद हो गई, ज़बान बंद हो गई, ज़बान से कोई आवाज नहीं निकल रही है। रोते रोते माँ बेहोश हो रही है, बहन बेहोश हो रही है। मर्द लोग कह रहे टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नहलाने का वक्त आ गया, नहला दो। नहलाने के लिए चौकी पर रखा गया, नाक की नथ निकाल दिया गया, कान की बालियां उतार दी गई, गले के जेवर उतार दिए गए, पैरों के पाजेब उतार दिए गए, पहनी हुई लुंगी उतार दी गई, कपड़े उतार दिए गए, पूरा नंगा कर दिया, नहला दिया गया। कफन के पास कपड़े में कफन दे दिया गया, कफन के पास कपड़े में कफन दे दिया गया। जिस कफन के कपड़े को देख कर डर लगता है, उसी कफन के कपड़े में कफना दिया गया। कफनाने के बाद 4 आदमी हमारे जनाजे को ले जा रहा है। माँ घर में रह गई, माँ कहाँ रह गई, बहन कहाँ रह गई, फूफी कहाँ रह गई, खाला कहाँ रह गई। जनाजा लेकर चले गए, नमाज़े जनाजा पढ़ दी गई, कब्र के गोरे में उतारा जा रहा है। हर एक सोचे मेरी और आपकी लाश को उतार रहे हैं। वो कब्र का गहरा, वो कब्र का गहरा, जिस कब्र के गहरा में ना तो कोई दरवाजा है, ना तो कोई खिड़की है, ना तो कोई बाप है, ना तो कोई भाई है, ना बहन है। 2 आदमी मेरे लाश को उतार दिया। उतारने के बाद वो दोनों आदमी भी कब्र से उतर जाते हैं और ऊपर से वो लकड़ी और बांस का मछली डाल देते हैं और 1 कुंटल मिट्टी डाल देते हैं। बाप डाल रहा है, भाई डाल रहा है, चचा डाल रहे हैं। कहाँ गया बाप, कहाँ गए भाई? हर एक बेवफा हो गए, हर एक छोड़ दिए।
तन्हे तन्हा कब्र में पड़े हैं, मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आते हैं, कहते हैं तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा था। जवाब नहीं आ रहा है। अंधा बहरा फरिश्ता आता है और कहता है तुझसे जवाब नहीं हुआ। वो लोहे का हथौड़ा लेकर हमारे जिस्म पर मारता है, मारता है, मारता है। और फरिश्ता कहता है तुझे मैं जोहर तक मारूंगा क्योंकि तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। जोहर का वक्त आता है और कहता है मैं तुझे असर तक मारूंगा, तू के जोहर की नमाज नहीं पढ़ी। तुझे मैं मगरिब तक मारूंगा क्योंकि तूने असर की नमाज नहीं पढ़ी। तुझे मैं इशा तक मारूंगा क्योंकि तूने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। मैं तुझे फजर तक मारूंगा क्योंकि तूने इशा की नमाज नहीं पढ़ी। मैं तुझे जोहर तक मारूंगा क्योंकि तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हे मेरी माँ और बहनों, हे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबों को उस नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस नमाज से कब्र में रोशनी का काम करेगी, जो नमाज कब्र में रोशनी का काम करेगी, नजात का काम करेगी, कब्र में सवालत और जवाबात के आसान होने का काम करेगी। अल्लाह ताला मुझे और आप लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।